وہ سکھائی ایک انجینئر کو اسلام سکھایا ہم نے, پورے دوالے ہوئے اس کے پیچھے پڑ گئے, ایک انجینئر کو اسلام آ گیا, پورے کے پورے اس کے خلاف فتوے لگا رہے قتل کر دو. یہ تو کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کا ایگو جو ہے نا وہ لو اسٹینڈرڈ پہ سیٹل ہو گئے. دکھائیے نا اس ایک انجینئر کو اسلام, کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ؟ کٹیا میں کیوں بیٹھے ہوئے تم, خود کو چھپایا ہوا ہے. یعنی اسے اپنے آپ سے چھپ رہا ہوں, لوگوں سے نہیں چھپ رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا آتا, اپنے آپ سے گھن آتی, الٹیاں آتی. ہم نے کیا اسلام قرآن کے حدیث کے نبی اسلام کی سیرہ کے اندر نبی اسلام کی لائف کے سٹینڈرڈ ہم نے نیچے ایسے کیے اپنے ایمولیشن میں. سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ اوکے ہے, میں بھی مسلمان ہوں, اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا ہے, میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں, میں نے کہیں سے ایک آیت یاد کر لی ہے تو میں اب اس کے تھرو قرآن پورا کا پورا اس کا مزاج سمجھ آ گیا مجھے. یہ ہمارے سٹینڈرڈز ہیں کہ تو اوکے کیسے ہے, ہاؤ آر یو اوکے ان دس, وائی ہو لیٹ یو ان دی روم بڑی. مجھے نا ابھی میں ٹی وی اسٹیشن بہت جاتا ہوں نا, تو مجھے نا ایک اسٹینڈرڈ کے اوپر میں بات کر رہا تھا, تو ٹی وی اسٹیشن والے بندے کہتے ہیں پاکستان میں اسٹینڈرڈ بڑا لو ہے. ایک ٹائم تھا کہ ریڈیو پاکستان پہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی بے سرا نہیں ہو سکتا تھا, اور آپ دیکھو کیا چل رہا ہے. اور میں شوق میں آ گیا نا, سو یو گائز نو, سو سب کو پتا ہے, مگر جو اصلی کاز اس پہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا کہ اسٹینڈرڈز کو اوپر کرنا, اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرنے ہیں اور ان کو اوپر لے کے جانا ہے. باقی ساری قوم خود ہی اوپر آ رہتی ہے. لیکچروں سے ایک ایک کر کے اپنا اپنا بیٹا پال لینے سے کچھ نہیں ہونا. اسٹینڈرڈ کوالیفیکیشن کی ہوتے ہیں, کوالیفیکیشن کے اسٹینڈرڈ اوپر کر دیں, اس کو میرٹ بولتے ہیں. میرٹ اوپر جائے گا, ساری کی ساری قوم اوپر چلی جائے گی. اس وقت کیا ہے, مذہبی لڑکی لڑکے کو دلاسا کیا ہے, ایسا کوئی خوش ہے وہ کہ اس کو اللہ نے کوئی وحی اتار دی, نعوذ باللہ, جیسے کہ ہاں تجھے بشارت ہو گئی. اور باقی کو چھوڑے نا لیفٹ سائڈ کو, ان کو تو اسلام چاہیے ہی نہیں. آپ کو تو چاہیے تھا, آپ تو اسٹینڈرڈز پہ آ رہے تھے. یہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بچاتے ہیں, بناتے ہیں, ابھارتے ہیں, اوج میں لے کے جاتے ہیں. یہ میں آپ سے کہتا تھا, صحابہ کے سٹینڈرڈ اوپر چلے گئے تھے کہ سوچ کی غلط قسمیں کون سی ہیں. کس کیسے پتہ چلے گا میری نچلی سوچ ہے یا اوپر کی سوچ, کیسے پتہ چلے گا؟ یو نیڈ ٹو ورک آن اٹ. ہمارے ٹی وی اسٹیشن پہ, ہمارے ریڈیو اسٹیشن پہ, ہمارے ہسپتالوں میں, ہمارے ورک شاپس کے اوپر جو ریناؤنڈ ورک شاپس ہیں, ہمارے انجینئر جنہیں کہہ رہا ہوں, ہسپتالوں میں ڈاکٹرز, نرسز, ہمارے اسکولوں کے استاد, کیا کریں اسٹینڈرڈ اور میرٹ کیا ہے؟ کوئی بھی آ جائے ٹیچر ہے, کوئی بھی آ جائے بس MBBS کیا ہو, کوئی بھی آ جائے انجینئر ہے بس ڈگری UET کی ہو, دیٹس اٹ. اسٹینڈرڈ یہ ہے. بس آپ کو بس, میں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جا رہا ہوں نا, 3-4 چکر لگ چکے ہیں میرے. ابھی یہ 10-20-25 دنوں کی بات بتا رہا ہوں, رمضان اور اس سے پہلے والا ہفتہ, ایک دن میں گیا لاہور میں. ابھی میرے ساتھ جو یوتھ کلب کے ہیں محمد علی, وہ میرے ساتھ ابھی گئے ہوئے تھے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں, وہاں پہ سائیکیٹرسٹ 2 بیٹھے ہوئے, ایک لڑکی اور ایک لڑکا. ڈرگ ایڈکٹس کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے لاہور کے ایک آگے کے علاقے میں. اور میں نے وی جسٹ وینٹ دیئر فار اے ٹاک, ان کو ذرا پرسپیکٹو آف لائف دینا تھا. ہم نے ایک لڑکے کی امی نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ میرے بیٹے کو وہاں جا کے آپ کر سکتے ہیں نا. آف کورس, کیوں نہیں کر سکتے, چلتے ہیں, جائیں. وہ علی بھی اللہ کا ولی ہے, آپ کو پتا ہے, محمد علی. اس کو میں نے کال کی, ایکچولی ہی از دا ون ہو پشڈ می کہ آج چلیں, ورنہ میں نے ایک کیلنڈر پہ لاک کیا تھا, اس سے سر آج ہی چلیں. اینڈ وی وینٹ. یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں, ان دا لاسٹ 15-20 days. اور ہم ادھر گئے, 2 سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ آئی ایسک, جنرلی ایسک, کسی کو مطلب سوچ بھی نہیں سکتا کوئی نا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کیا کراتے ہو ادھر نا ان کے لیے؟ So she was looking at me, she kind of knew me, I guess, I don't know, and she started coming up with weird techniques, جو کہ وہ جو صومالیہ میں جو پرانے قبیلوں کے جو چیف نہیں ہوتے, وہ جو کرتے ہوں گے نا کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے دماغی بیماری, وہ والے کام یہاں پہ ہو رہے تھے. And I said, آپ مجھے ویسے بتائیں نا, ایز اے میڈیکل پروفیشنل آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کوئی سائیکالوجسٹ نہیں, سائیکیاٹرک ایویلیویشن کرتی ہیں, سائیکیاٹرک میڈیسن کی فالوور ہیں. You are a MBBS doctor, you put 4 years after that, you're not a little girl, nor are you a boy. اور ایک sitting psychologist بھی تھا by the way, and you have no idea کہ کس لیول کے اوپر وہ کیا کرتوت کر رہے ہیں ادھر. اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ نشہ تھوڑا سا دینا شروع کر دیں, ان کو بھی نشے ملے ہیں, ان کے اسٹینڈرڈ اوپر چل جائیں گے. ایسی all فال قسم کی کہانیاں مجھے سنا رہے. And then I asked محمد علی, I said, یار مجھے لگتا ہے یہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں, یہ کچھ اور چل رہا ہے ادھر. جیسے نہیں وہ جو فراڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتے, خود ہی کسی نے کھول لیا, اپنے رشتے داروں کو کہہ دیا لوگوں سے پیسے لینے کے لیے, whatever, could be anything. But he said, نہیں سر, یہ it's legit. He said, it's legit. And I said, I don't think it's legit.
But even if it is legit, the standards at which they're running, those standards are not legit. इनको डॉक्टर किसने बनाया? असली सवाल ये है, इनको इधर किसने रखा? छोड़ दें इनको डॉक्टर किसने बनाया? इनको उनको डिग्री किसने दी थी? So मतलब 8-10 मैंने बेसिक सवाल किया, और मैंने उस तरह नहीं किया कि मैं उनको कोई एवेल्युएशन करने आया ना, मेरी ना ही नीयत थी, ना ही मेरा कोई सोच थी ऐसी. मैंने उनसे पूछा ये कर रहे हो वो क्या होता है, ये कर रहे हो वो क्या होता है. ऐसे अच्छा छोड़ दो, मैं जो भी कह रहा हूं आप नहीं कर, आप क्या करते हैं? तो कहते हैं सर, लड़का कहता है सर हम ना मिलीग्राम चेक करते हैं, अगर वो पहले कितनी ले रहा था हम उसको टेपर डाउन करते हैं, उसको हेरोइन और दे रहे हैं. सर ओके, आप हेरोइन दे रहे हो, व्हाई? I mean, I know there's a way to handle all of this, but why? उसके पीछे साइंस है, वो क्या है, क्यों दे रहे हो? कहते सर ये तो आप बेशक गूगल कर लें. ये जवाब दे रहा डॉक्टर, आप बेशक गूगल कर लें. एंड आई सेड मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं गूगल कर रहा हूं कि तू ठीक है कि नहीं. मैं तो उसे पूछता था तेरी पीछे सोच क्या है, आप बेशक गूगल कर लें. जैसे कोई मैट्रिक का बच्चा गूगल करके कोई आर्टिकल पढ़ के आ गया और उधर लग गया और उसने कहा होगा आगे गूगल कर लें, और मैं इनको हेरोइन के छोटे वाले टीके लगा देता हूं क्योंकि हमने टेपर ऑफ करने हैं, इसके विड्रॉल नहीं कंट्रोल हो रहा है इस वक्त. उसने नहीं बोला, ये उसको पता नहीं था क्यों दे रहा है, बेशक आप गूगल कर लें. ये हैं वो स्टैंडर्ड्स. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता है, वो अभी नया एसोसिएट प्रोफेसर हुआ है, वेरी क्लोज टू मी. ही सेड कि मैं लॉ पढ़ाता है. कहता है किताब पढ़. मैंने कहा तुझे तो लॉ आता नहीं, तू क्या पढ़ा? कहता है लॉ क्यों नहीं आता यार, कैसी बातें कर रहा है, जस्ट बिकॉज मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने पेपर तो दिया था ना. से कब दिया था लॉ का पेपर? एंड आई डिडंट वांट टू इवैल्यूएट हिम एज टू कॉल हिम आउट, उसको एम्बैरस करने के लिए. मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसी कौन सी टेक्निक निकाली है पाकिस्तान ने कि एनी से मैंने एलएलबी किया था ना, कब किया था? 2010 में किया था. कामयाब भी किया था इसने. उसके बाद अब वो लॉ पढ़ाता है. एक दिन क्लास में क्या हुआ, लॉ की किताब उठाकर उसने स्टूडेंट लड़की के सर पे मार दी. ये बहुत सवाल कर रही है, मुझसे नहीं होता यार, छोड़ के आ गया. और मुझे कहता है यार मुझसे हरासमेंट हो गई, मैंने लड़की को किताब और लॉ की किताब उठा के मार दी क्लास में, और पूछी जा रही थी. मुझे गुस्सा आ गया. मैंने कहा रखो अपने पास ही. वो गलती से उसके सर पे लग गई. अब मुझे बता मैं क्या करूं, गलती से लग गई. कोई ऐसा तरीका बता कि केस ना हो. तो केस हो तो मैं लॉयर हो, क्या बताऊं. ना से तू उस लड़की को छोड़ कि जिसको तूने किताब मारी है, वो स्टैंडर्ड जिसके ऊपर जिस लड़की ने तुझे सिलेक्ट किया ना, बाय द वे उसकी वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट खातून है, उस लड़की को पकड़ जिसने तुझे टीचर रखा है, वो है असली मसला. उस बेचारी का क्या कसूर, इसको तूने किताब मार दिया है, तेरा भी और उस लड़की का इतना कसूर जिसने तुझे टीचर रख लिया, वो है असली में मसला. ये है मेरिट्स हमारे. मैं अभी टीवी पे प्रोग्राम कर रहा था, 2.5 घंटे का प्रोग्राम काट के आधे घंटे में उन्होंने लगाया. आप देखना, मैंने एक मौलवी साहब से कहा फलस्तीन के ऊपर टेंपल का मुझे बता दें मतलब क्या है. कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है. उससे फर्क ये पड़ता है कि मैं बता दूंगा पीछे तीसरे टेंपल के पीछे असल में कहानी क्या चल रही है, जिसके पीछे हमारा एक बच्चा कत्ल हो रहा है. तीसरे टेंपल की लड़ाई है क्या असल में? उनको मकार कह के हम एक साइकोलॉजिकल डिसोनेंस में डाल देते हैं यूथ को. हमें ये बात बखूबी मालूम हो जाती है कि ये एक मकार और शातिर कौम है. कत्ल हो रहा है और तीसरे टेंपल के पीछे कत्ल हो रहा है. वो सियासत के पीछे नहीं, मजहब के पीछे कत्ल हो रहा है. उनका टेंपल सियासी नहीं, मजहबी एलिमेंट है. 2 तरह के ज्यूज हैं, रैबिनिक ज्यूज और बेबीलोनियन ज्यूज. रैबिनिक ज्यूज नहीं मारते होते, बेबीलोनियन ज्यूज मारते होते मुसलमान. और अभी मैं बता रहा हूं उसको आगे से. पता है क्या, हम भी यही बातें करते हैं. साहिल साहब तो इंग्लिश में बोल देते हैं तो लोग कहते हैं कि इनको पता है. जी अल्लामा साहब, साहिल साहब ने बड़ी एक तारीफ बताई है कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं. देखिए यही बातें जब उलमा करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि इनको तो पता ही नहीं, ये सारा कुछ ये बताते रहते हैं. वही बातें अगर साहिर अदीम साहब थोड़ा इंग्लिश बोल के करेंगे तो फिर समझा जाता है कि नहीं ये असल बात है. देखिए उलमा हमेशा से ये बताते रहे हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये सारा कुछ बताते रहे. और जो ये बात की गई है ना कि मुसलमान, ये बड़ी एक खतरनाक रवश की तरफ लोगों को भाला जा रहा है. एंड आई सेड तू ये कोई मान रहा, मैं तेरी फील्डिंग कर रहा हूं. आई एम फील्डिंग फॉर यू. मैं चाह रहा हूं मौलवी ट्रेन हो जाए, बाहर आ जाए. मैं चाह रहा हूं कि मौलवियों से कॉम्पिटेंस हो. मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि बाहर से बंदा लेके आओ. मैं कह रहा हूं मस्जिद से निकालो बंदा को, मतलब डेवलप करो. नहीं, वो उसकी फील्डिंग भी उसको कबूल नहीं, बिकॉज मेरिट इतना लो है कि वो वाला बंदा भी आलिम डिक्लेयर हो गया. ऐसा बंदा आलिम हो गया. अब वो क्या करूं, वो ईगो चढ़ गया बेचारे का. ईगो का लेवल होता है, वो चढ़ा दिया हमने. लो स्टैंडर्ड ईगो 1 सेकंड में ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड भी बैठा ना कहीं ईगो, तो कहीं आइडेंटिटी तो कहीं पे डिक्लेयर करनी होती है. लो स्टैंडर्ड पे ईगो आ गया, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते किसी का. ये तो बहुत बड़ा मसला है. उस बंदे को कैसे बताऊं कि यार वो तो इनकॉम्पिटेंट है. लोगों का भला कर. अपने बेटे को भी मैं यही कहूंगा, अपने अब्बू को भी मैं यही कहूंगा, अपने आप को भी कहूंगा कि सर अगर आपने लोगों को ठीक करना है, आपकी इज्जत का तकाजा है कि आप कॉम्पिटेंट हो जाएं.
मगर मैं ये किसी भी पाकिस्तानी से कहूंगा वो समझेगा मैंने थप्पड़ मारा और मेरे खिलाफ ग्रज रखेगा और मेरे खिलाफ साजिशें करेगा। सोचें जरा। मुझे कहते हैं ओ अब मुसलमान मौलवियों को क्यों साइंस सिखा रहे हैं, और डॉक्टर इंजीनियर को इस्लाम सिखाएं, मौलवियों को साइंस सिखा रहे हैं। 10 सवाल करूंगा इसराइल के, 10 में से 10 में किसी का जवाब नहीं आता होगा। आपको दुश्मन का पता ही नहीं है और दुश्मन हमारे बच्चे मारी जा रहा है। दुनिया साइंस के थ्रू हमारे बच्चे अगवा हमारे घरों से कर रही है। हमारे अपने घरों में बच्चे बेडरूम में बैठ के यूट्यूब के ऊपर साइंस सीख रहे हैं, ठीक है। हम मान नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि नहीं हमने नजरियाती हदूद का जो है ना वो दफा किया हुआ है। कौन सी नजरियाती हदूद कहाँ पे किया हुआ है? पाकिस्तानी मौलवी अगर वो कुरान पाक के अंदर से वो वाली सियासी एक्यूमेन, सियासी आईक्यू अपना बढ़ा ले, कुरान पाक के थ्रू वो साइंस का आईक्यू बढ़ा ले, ये दो चीजें, तो पूरे यूथ ने इसकी तरफ रुख करना है। बजाय इसके कि मौलवियों को आप साइंटिस्ट बनाएं, साइंटिस्टों को मौलवी बना दें, क्या बात है, ठीक है, तो इंशाल्लाह वो मसला हल हो जाएगा। वो सिखाई, एक इंजीनियर को इस्लाम सिखाया हमने, पूरे दवाले हुए उसके पीछे पड़ गए। एक इंजीनियर को इस्लाम आ गया, पूरे के पूरे उसके खिलाफ फतवे लगा रहे, कत्ल कर दो। ये तो करते हैं क्यों? आपका ईगो जो है ना वो लो स्टैंडर्ड पे सेटल हो गए। सिखाइए ना इस एक इंजीनियर को इस्लाम, क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? आपको स्टैंडर्ड्स जिस दिन समझ आएंगे ना उस दिन आपको अपने आप से घिन आएगी, खुदा की कसम घिन आएगी। शिक्षा नहीं देख सकेंगे, एकदम स्टैंडर्ड की समझ आ गई, स्पेशली इस्लाम के स्टैंडर्ड्स। अपना आप मक्कार, अय्यार, झूठा, शातिर, फ्रॉडिया लगेगा आपको कि ये हूं मैं, ये मेरी औकात है। लोगों के सामने मैं जाता ही क्यों हूं? आपको पता है जितने भी सूफिया है ना क्यों खानकाहों में भाग जाते थे? अपना आप देखा नहीं जाता था उनसे, स्टैंडर्ड पर चलते थे उनको, अपना आप नहीं देखा जाता था। पूछा है ना मैंने, अभी भी हैं, जाते तो कहीं नहीं है, असली अल्लाह के वली पहुंचे हुए। कुटिया में क्यों बैठे हुए तुम? खुद को छुपाया हुआ है। यानी इसे अपने आप से छुप रहा हूं, लोगों से नहीं छुप रहा हूं। लोग समझते हैं मुझे पता नहीं क्या आता, अपने आप से घिन आती, उल्टियां आती। जिसको पता चल जाता है वो नहीं बचता, उसको अपनी असली शक्ल नजर आती है। वो शक्ल पता किसको नजर आती है? वो मुनकर नकीर को नजर आती है। उस कब्र में ना असल में हमारी असली शक्ल नजर आ जाएगी हमारी। ये तू ये एक्टिंग करता रहा सारी उम्र, लोगों को ये चिताता रहा, बताता रहा, बनाता रहा, बनावटें करता रहा कि तू बड़ा एक्सपर्ट है, लोग मेरी सुने। एक दफा नहीं मान सका, नहीं आता मुझे, आधे सेकंड के लिए अपने आप से ही मान लेता अकेले बैठ के कि नहीं आता, पढ़ लेता हूं या सीख लेता हूं। कैसे? ईगो करने ही नहीं देता। देयर इज नो वे। आप समझ रहे हैं छोटा मामला है, अल्लाह की कसम 99% इंसानों का डाउनफॉल ये है। गोरे हो, काले हो, गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं, कॉम्पिटेंस के और आपके बीच में वो एक झूठी अना आ जाती है और वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि नहीं सर मैं इनकॉम्पिटेंट हूं। एक दफा मुसलमान लड़के और लड़की से कह रहा हूं 20s में, मैं कसम उठा लेता अगर मुझे इजाजत होती, इधर 40 साल प्लस ने नहीं मानना, ईगो बहुत बड़ा हो जाता है। आप लोगों से कह रहा हूं अपनी इनकॉम्पिटेंस मान लें, अल्लाह की कसम आपके भले के लिए कह रहा हूं। मैं कोई लिबरल, कोई किसी किस्म की कोई यहूदी साजिश नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं अल्लाह के लिए अपनी इनकॉम्पिटेंस मान लें। सबसे इनकॉम्पिटेंट बंदा हिजाबी लड़की और दाढ़ी वाला लड़का है, और सिर्फ उसी से उम्मीद है। उसने नहीं सीखना बस कि नहीं मैं बस क्योंकि मुझे कुरान हिफ्ज हो गया या हदीसें आ गई। यू नीड टू टेक दीज 3 थिंग्स इनटू प्ले, योर इंटेलेक्चुअलिज्म, योर पॉलिटिसिज्म एंड कुरान हदीस। ये तीनों का कॉम्बो लगेगा, आप लोगों से ज्यादा अट्रैक्टिव कोई चीज नहीं है दुनिया में। गोरियां कालियां, गोरे काले सारे आपके पैरों में भागेंगे आगे, इतने अट्रैक्टिव हो जाएंगे आप। आपको अगर दुनिया ही चाहिए, दुनिया ही ले लें। एटलीस्ट आप इस्लाम के अंदर कॉम्पिटेंट हो जाएं। दुनिया, इस्लाम का मतलब होता है ये 3 पिलर्स, इनमें कॉम्पिटेंट होते हैं। जिस दिन आप कॉम्पिटेंट हो गए उस दिन आपको आपके बच्चों की वजह से बाकी की दुनिया तर जाएगी, आपकी वजह से तरे ना तरे। स्टैंडर्ड ऊपर कर दें, फेल करें मुसलमानों को कि नहीं तू अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचा, फेल करें। क्वालिफाई yourself to disqualify your own people, qualify yourself to disqualify your own father and mother and brother and sister and yourself. इतनी क्वालिफिकेशन लेके आए। अम्मार बिन यासिर ने एक दफा ना उमर खत्ताब की हदीस सुनाई। हज़रत उमर खत्ताब ने कहा इसका दूसरा रावी लेके आओ, मैं नहीं मानता रावी के। तो अम्मार बिन यासिर ने कहा मैं अकेला था जब नबी इस्लाम ने मुझे कहा है। तो उमर ने कहा कि मैं नहीं मानता। उन्होंने फिर वो कहा कि नहीं मैं अकेला था। तो उनके पीछे भागने शुरू हो गए, लिटिल स्टिक लेके। तो आगे भाग रहे हैं और साहबा से कह रहे हैं मुझे बचाओ, मैं क्या करूं, मेरा कसूर नहीं है। तो उमर ने कहा नहीं, स्टैंडर्ड को मैं नहीं तोड़ूंगा, बस
Otherwise, anyone can walk in and say, مجھے نبی اسلام نے حدیث سنائی. عمار بن یاسر, the top of the top. عمر خطاب نے کہا نہیں بھائی, میں اسٹینڈرڈس نہیں نیچے آنے دوں گا. سو یہ میرے اور آپ کے ایگو کا سوال نہیں ہے, اللہ کی قسم آگ اصلی ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الجنہ حق, الجہنم حق, اور میری بیٹی کو آگ میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ دیا ہوا ہے, اپنی بچوں کو آگ سے بچائیں اور ان کو اس 3 لیول پہ کمپیٹنٹ کر دیں. آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ ایک دفعہ بس ہم نے شیشہ دیکھنا اصلی, بس اللہ کی قسم 3 4 5 6 سالوں کے اندر زمین آسمان کا فرق آ جانا. اور میرے اندر آئے, آپ کے اندر آئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے بچوں کو وہ میرٹ ملنے ہیں کہ انہوں نے پھر لگانی ہے وہ چست. بس یہ ہے اصلی کہانی. There is only one way of doing this. There is only one solution here. Raise the standards. Raise the standard of competence, the reality of competence.